Yeah. So today we're going to discuss this video called 10 Habits of All Successful People. This is a 10 minutes video. We'll go through this video, and after we've seen the video, then we will have a candid discussion on it so that we are able to take something back home into our own business and life. Does that make sense? Mm. Great. Means different things to different people. For some, success might be financial achievements, becoming a millionaire, for example. For some, it might mean accolades. For sportsmen, it may mean trophies, championships, or medals. For some, being successful might simply mean achieving a state of wellness, health, or happiness. Whatever it means to you, take note of these 10 habits of all successful people. They apply to any area and any meaning of success. Number 1, they set goals. You've probably never met a successful person who doesn't set goals, because the chances of you finding what you want without a clear target to move forward are right around 0. If you don't know where you're going, you will end up someplace you didn't plan to be. Setting goals should be the number 1 priority for anyone seeking success. Define exactly what it is you want, your end goal. Break down exactly what is required to get there. Mini goals. Make sure your why, your reason for doing what you must do, is strong. So when you hit those roadblocks, when things go wrong, as they always do, you have the strength and purpose to keep going. Number 2, they take responsibility for their life. Another key attribute of all successful people is they take complete responsibility for the success and the failures in their life. Unlike the majority, they never play the victim role. If something doesn't work out, they don't blame others. They learn the lesson. Learn one more way not to do something and move on quickly. Your energy is always best spent in the present and planning for the future. Your thought process should always never living in the past or making excuses as to why you aren't where you should be. Remember, everyone suffers setbacks. Everyone has the opportunity to either blame others and circumstances or to focus on moving on and creating a better future. Regardless of what has happened, you decide what you do now. Number 3, they have great self-discipline. Discipline is a strong trait of all successful people, and it is one that can be developed with consistent use. Anyone that works from home or unsupervised knows the importance of self-discipline. When you're alone, will you choose to go through social media, watch cat videos on YouTube, or do something that will be beneficial for your future? It is much easier to have discipline if you have clear goals and a meaningful purpose, something that is much more important than meaningless distractions. Number 4, they are obsessed with self-development. You can't really claim to be successful if you have given up working on yourself. This doesn't mean you are never satisfied, just that you know it is human nature to want to grow and learn new things. Be open to learn new things and develop your mind through mentors, audiobooks, and reading. The more you learn, the more you will earn, financially and spiritually. Number 5, they read a lot. Reading is a common pastime of many highly successful people. The majority these days can't sit alone for 2 minutes without becoming bored, picking up their phone to go on social media, probably to post about how bored they are. Successful people, however, are almost always happy to be alone in quiet.
to have the opportunity to read or listen to something that will benefit their mind and their future. If you're not a reader, try audiobooks. You can play them in your car, in the gym, or while you shower, and use time that might normally be wasted to gain new skills, new strengths. Number 6, they manage their time well. Time management is essential to success. Unsuccessful people usually get stressed and overwhelmed when there are too many tasks on their to-do list. Successful people are rarely phased. They prioritize the big payoff and most rewarding tasks first and leave the insignificant ones to last. Knowing it matters most to do the most valuable tasks first. Successful people plan in advance, days, weeks, months ahead, knowing clearly what needs to be done to complete their jobs and reach their goals. Number 7, they take risks. If you don't buy a ticket, you can't win the raffle. If you don't take big risks, you can't achieve big rewards. Successful people know that there will be times they will need to take risks in order to get where they need to go. Often, most people won't take those same risks for fear of failure. However, the greater failure to successful people would be that of regret. Risk going for the life you want, or guarantee living with one you don't want. Number 8, they keep going when they suffer failure and setbacks. We all suffer setbacks. Every single person that attempts to live their dream life will suffer through failure. Many of them might even lose everything. Most quit. The successful never quit. They keep going, knowing their greatest character is formed in adversity, knowing their success story is being written in every moment. And it will be especially good now they have a comeback story. Number 9, they find a way to win. Successful people find a way, period. Whatever life throws their way, they deal with it, dodge it, smash through it. Whatever is required, they find a way to win. It's the whatever it takes mentality. It's the confidence in knowing whatever happens, I will give my all and leave nothing on the table. I will find a way to win. Number 10, they do what they love. If you're not doing what you love, you can't really claim yourself a success. Spending the majority of your working hours, also known as the majority of your life, doing things you hate for money is not successful living. It's torture to the soul. If you need to suffer doing something you don't like to get to a life you love, do that. But do not lose sight of exactly that. Your ultimate purpose. Find your life purpose. Think of all the things you love to do more than anything in the world. Then brainstorm how you can turn those passions into profit. Doing what you love every day. Even if you were taking a pay cut, it will be worth it. Do what you love every day, and you will never work a day in your life. हाँ जी। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया अतुल जी, इतना बढ़िया ये सारा समरी जो अभी तक हमने सीखा किया, और खासकर आपके युबंतु में जो किया सारा, मतलब एक से एक लाइन मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं पढ़ी है, और मैं उसको प्रैक्टिस भी किया है और कर भी रहा हूँ और प्रीच भी कर रहा हूँ ये सारी चीजें। बट ये सारी कंबाइंड कभी नहीं देखी थी तो ये वीडियो या जो भी है मुझे आपको भेजनी पड़ेगी एक्चुअली। ये सारा मेरे लिए रिवीजन कोर्स है अब ये। Fantastic. All right. So welcome, Mithilesh ji. Good morning, sir, or good morning. Happy Ram Navami. Ram Navami. आज तो दशमी हो Sorry. गई। Oh, Dashmi. अभी विजयादशमी। आज तो दशहरा है, दशहरा मतलब पूरा गलत बोल दिए। All right. So let me share the 10 things that this author shared. पहली चीज थी, so these are 10 habits of successful people. पहली चीज उसने कही कि they set goals. Second thing he said is they take responsibility. Third is they have self-discipline. Fourth is they read a lot. Fifth is they manage time well. Sixth is they take risk. Seventh is they keep going. Eighth is they find a way, even if there is none. And then the next one is do what you love. I think ये सारे हो गए ना 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Learning. Yes. Do what you love is Ikigai principle. Do what you love is there. So no, I think 10 of them have happened. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 of them has happened. Yeah. Learning was there, no? So they keep, they read a lot. Learning was separate. Okay, I'll share the video and we can take it from there. बिल्कुल साहब, ये तो चाहिए कि ये मैं इसको अब आई रिजॉल्व फॉर माई सेल्फ हर रोज सुबह उठ के पहले ये वीडियो ऑन करूंगा 4 बजे ना। अब मैं इसके लिए 10 मिनट निकालूंगा अपने बाकी टाइम से, और इसको मैं हर रोज जैसे ये गायत्री मंत्र पढ़ती हैं मैडम तो मैं इसको सुनूंगा। सक्सेस मंत्र। All right. So राजेश जी आपके लिए क्या ओपन अप हुआ? और how is this applicable to you? और मे बी या सत्या जी आपने जाना है ना, तो आप पहले बता देंगे तो अच्छा रहेगा। If there is something else. बिल्कुल साहब, थैंक यू, आपने ये मुझे मौका दिया। मेरे लिए ये सारी चीजें एप्लीकेबल हैं और बहुत ही बढ़िया हैं। इसके बारे में मैं एक छोटा सा एक सुनाना चाहूंगा वॉरेन बफे का, जो मैं बोलता भी रहता हूँ। वॉरेन बफे जो मुंगर, जो 2 इतने रिच लोग हैं रहते, तो मुंगर को पूछा एक जर्नलिस्ट ने भी ये वॉरेन बफे के बारे में आपको, कहते वॉरेन बफे सारा दिन बैठा रहता है कुर्सी पे और पढ़ता रहता है और बीच में कुछ सोचता रहता है और कभी कभी फोन पे बात कर लेता है। मेरे हिसाब से ही इज डूइंग नथिंग यूजफुल। तो ये था वॉरेन बफे का, उसके पढ़ने का, बिकॉज वो बहुत पढ़ता है। तो फिर वॉरेन बफे से पूछा, भाई तुम ये मुंगर चार्ली के बारे में क्या कहते? मेरा एक ही लाइन है कि जैसे ये कह रहा था ना, ही डूइंग नथिंग गुड, चार्ली डज एवरीथिंग वट एवर आई डू बेटर देन मी। इसका मतलब है कि दोनों ही बस पढ़ते ही पढ़ते हैं और कुछ नहीं करते हैं। एंड दैट इज करेक्ट आल्सो। एंड तो ये जो रीडिंग का इसने बोला है, आई एम ऑलरेडी डूइंग दैट। एज यू एवरी 15 days आई बाय अ न्यू बुक एंड रीड एंड देन अप्लाई इट। और ये तो बहुत ही बढ़िया। एंड फेलियर वाला, मेरे ये एक फ्रेंड का कल ही मैं पढ़ रहा था, तो 2 बार एयर इंडिया के चेयरमैन रहे और 2 बार रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रहे, 1 बार आईटीडीसी के भी, और हर जगह उनको फायर किया गया था, हर जगह, और कई जगह फायर करके फिर दोबारा भी बुलाया गया था रेलवे बोर्ड ने। तो उनका ये था, उन्होंने डिसाइड किया जब वो यंग ऑफिसर थे कि हमारा जो रेल म्यूजियम है इसको गिनीज बुक में लाना है।
तो गिनीज बुक के लिए अप्लाई किया, ही फेल्ड, इट वाज नॉट, दोबारा अप्लाई किया, ही फेल्ड, तीसरी बार अप्लाई किया, 6 बार करने के बाद हमारा नेशनल रेल म्यूजियम गिनीज बुक्स में आ गया। उसके बाद एक हमारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन था जिसमें सबसे ओल्ड टेक्नोलॉजी थी और वो उसको गिनी बुक्स में लाना चाहते थे रिलेज की। 7 बार अप्लाई करने के बाद ही ब्रॉट इट इन गिनी बुक। अब उन्होंने क्या किया, एक जो वर्ल्ड का सबसे पुराना स्टीम इंजन है जो 150 साल पुराना है, उसका नाम है फेरी क्वीन, तो इस बंदे ने उसको चालू किया है और अभी भी स्टीम से ही चलाता है। जो 150 साल पहले स्टीवन ने चलाया था, सेम टेक्नोलॉजी उससे चलाता है, और अब वो टूरिस्ट धरोहर है, नेशनल धरोहर है, गिनीज बुक में है। और ये अंग्रेज लोग आते हैं, उस पर सवारी करते हैं, हफ्ते में एक दिन वो दिल्ली कैंट से रेवाड़ी जाता है। तो मैं उसकी बात बता रहा हूँ कि वो इतनी बार फेल हुआ और इतनी बार सक्सेसफुल हुआ। मतलब कैन यू बिलीव कि एक बंदे को चेयरमैन रेलवे बोर्ड से निकाल दिया जाता है, फिर सरकार उसको एयर इंडिया का चेयरमैन बना देती है, फिर वहां से निकाल दिया जाता है, दोबारा रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाता है। और आईटीडीसी के जब चेयरमैन थे वो, उनको ओवरनाइट निकाल दिया गया था क्योंकि अशोका होटल बेचना चाह रहे थे मिनिस्टर, एंड ही एज एमडी उन्होंने कहा नहीं ये नेशनल धरोहर है, इसको बेच नहीं सकते। तो मिनिस्टर ने इसको रात को ही बोला जस्ट गो बैक, you are no more MD, I don't need you, how you can oppose me? And minister was nothing other than Arun Shuri, prime minister was Atal Bihari। दोनों बेचना चाह रहे थे, इसने बेचने नहीं दिया था, और वो 500 करोड़ में बिक रहा था। अब वो 2500 करोड़ में लीज, 25,000 करोड़ में लीज पे दिया जा रहा है। यू सी दिस एग्जाम्पल, बिल्कुल इसने जो बोला वही है कि आप फेलियर से डरो नहीं, जितना ज्यादा फेल हो अच्छा है। देयर इज ए बुक कॉल्ड फेल फास्ट। मैं ये कहता हूँ फेल तो होना ही है, बट जितनी जल्दी फेल हो उतना ही अच्छा है। तो हमारे ये अश्विनी लोहानी साहब जो मेरे बैचमेट है जिनकी मैं बता रहा हूँ, इनका ये था यार जितनी ज्यादा बार फेल हो उतना ही फायदा है तुम्हें, जितनी ज्यादा बार। मेरा होता था कि जितनी जल्दी फेल होके एक बार खत्म करो, फेल तो होना ही है, तो जितनी जल्दी फेल हो जाओ फिर आपको सक्सेस मिलेगी। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, मतलब मुझे खुद इतनी बढ़िया लगी है और खुद मैं इन चीजों का फायदा भी उठा रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ ऐसी चीजें। सो थैंक यू अतुल जी, मुझे अभी कहीं निकलना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। थैंक यू जी। सो हम अगले हफ्ते सुबह हम इसके लिए मिलेंगे और दोपहर को लंच के लिए मिलेंगे। बिल्कुल साहब, और लंच का CSOI KG मार्ग नियर इंडिया गेट 12:30 onward we will be there, I'll be doing all the bookings and परफेक्ट है सर, सब डन। कुछ वो मैं ही डिसाइड करूंगा। डन है, ओके ओके, थैंक यू, बाय थैंक बाय यू। बाय बाय। हैप्पी दशहरा एंड फेस्टिवल डेज टू ऑल ऑफ यू till we Right. meet on Friday. Happy Dasara, sir. Happy Dasara, sir. Happy Dashera. हैप्पी दशहरा जी। राइट, हाँ जी, अब नेक्स्ट राजेश जी आप बता रहे थे। Yep. I think rather than speaking the way Satyaji spoke more about others, I would like to speak more about myself. I have practiced a lot of these in life, of course, as a comprehensive way it's coming out forward. I do want to, while I was listening to this, there's one phase of my life, which was almost 20 years of my life, when I was director in a company. I stopped learning. And I've kind of waited for that in the last 2.5 years. And I realized the importance of learning. And I was there teaching other people, which was a good thing I was doing. I was grooming people. But I had somewhere stopped learning. So, of course, I can't replay that back again. But yes, I've seen the importance of learning in these last 2 years. Reading is something I used to be a very voracious reader. I have given up that again. And I do want to, rather than looking at WhatsApp messages and
what have you. I think reading is something I've been collecting books now. The last time Shah Sahab, offered, from his library a lot of free books. So I picked up two books from there. So I'm going to be sitting and reading them. So that is something which I want to bring back, because reading is like, क्या word use करूँ? It's like the manure for your mind. Absolutely. Keep reading, your mind stays active, your mind expands. Reading is a very, very good exercise for expansion. So these are two things I do want to. Goal setting, I'm a little weak right now. At times I feel अब तो goal पहुंच चुका है, but then I feel life तो अभी और लंबी है आगे, तो goal तो होना चाहिए. At 68 years, one might think जिंदगी के बहुत पड़ाव आगे डाल कर चुके हैं, but then that's not the end of life. So goal is something which I think I have to work on, which I'm again weak at. So thanks Atul for bringing this video forward, and share kar lo so that one hears it again and again. And so already shared it on the Inner Circle WhatsApp group. Yes. Yep. Thanks Atul. Great. Thank you जी. हाँ जी मनीष जी. सर इसमें जितनी भी बातें थी, व्हाट एवर द 10 इम्पोर्टेंट थिंग, वो सबका सब इम्पोर्टेंट है, बट पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है दैट इज द सेटिंग ऑफ गोल एंड कीप गोइंग. अगर आपका गोल डिटरमाइंड है और उस पर आप यू हैव टेकन डिसीजन कि आई हैव टू अचीव दैट गोल और यू आर ऑन कीप गोइंग, तो जो भी फेल्योर आते हैं, लर्निंग है, वो अपने आप सब होते जाएगा. बशर्ते आपके माइंड में गोल होना चाहिए और ये होना चाहिए कि मुझे उस गोल को अचीव करना है. ये दो चीज रहेगा तो सेल्फ डिसिप्लिन, लर्निंग, रीडिंग, ईच एंड एवरीथिंग अपने आप आएगा. तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हम जैसे राजेश सर ने बताया कि गोल होना चाहिए, चाहे वो आप किसी भी एज पर हो. सबसे पहले यू मस्ट हैव गोल, और गोल पर गोइंग कंसर्न होना चाहिए. मुझे चलते रहना है, फेल्यूर कोई भी आए, आई हैव टू लर्न फ्रॉम फेल्यूर और आई हैव टू गोइंग कंसर्न. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. ऑसम. मिथिलेश जी. मुझे तो सारी चीजें इसकी अच्छी लगी, और मुझे लग रहा है कि जो अभी प्रेजेंट जिंदगी में जा रहा है, तो उसमें सब चीज इसमें से है जो मतलब की है. जब पढ़ना बंद कर देते हैं तो वही राजेश जी जो बोल रहे थे कि नहीं सिर्फ सिखाने के मोड में जाते हैं, आपका डिक्लाइन शुरू हो जाता है. तो ये हमेशा ही होता है. आप खुद सीखना बंद करेंगे तो आपकी ग्रोथ बंद हो जाती है. तो वो होता है और पास्ट जिंदगी में होता रहा है. मुझे 10 के 10 पॉइंट बहुत अच्छे लगे, और जैसा सूर्या जी वाला थ्योरी मुझे अच्छा लगा कि रोज उठ के एक बार सुन लो इसको. जो चीजें दिमाग से हट गई है वो ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा गायत्री मंत्र की तरह. और अच्छी खास बात तो ये है ना कि कलेक्शन है दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोगों का. तो इतने सारे लोगों ने इन सब थ्योरीज को अपना के अगर सक्सेस पाया है तो प्रूवन चीजें हैं. सारी चीजें अच्छी हैं, बहुत बढ़िया कि स्टार्ट करते साथ इतनी अच्छी वीडियो देखने को मिली. ऑल्दो शुरुआती पार्ट नहीं देख पाए तो वो आपने भेजा हुआ, तो मैं उसको अभी 2-3 बार देखूंगा. Awesome. बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त हमको इसकी. Fantastic. Anything else you'd like to share? अब अदर देन दिस कुछ अच्छी चीजें चल रही है जो पर्सनल और बिजनेस जिंदगी में. उस पे आते हैं, 5-7 मिनट के बाद आते हैं. तो मैं भी शेयर करता हूँ मेरे को क्या मिला इसमें से. तो मुझे जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो दिखाई दी वो ये है, जो कि इन सारी चीजों का वो है सेंटर है, वो ये है कि सक्सेसफुल पीपल दे आर गवर्न्ड बाय देमसेल्व्स.
उनका कंट्रोल अपने ऊपर पूरा है। तो चाहे हम सेट गोल की बात करते हैं तो वो स्वयं गोल सेट करते हैं, कोई और नहीं करता। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नोबडी एल्स इज। सेल्फ डिसिप्लिन, द पावर इज विद मी। Read a lot, the power is with me. Manage my time well, so the power is not outside of me, it is within me. Then we're talking about taking risk. That again is my appetite, that is not somebody else's appetite. Keep going is again my choice. Find a way is again my choice. And do what you love is again my choice. तो इसको अगर हम मैकेनिक्स के तौर पर कहें तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सक्सेसफुल आदमी के भीतर है, बाहर नहीं है। और ये एक फिजिक्स का लॉ है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब तक बॉडी के अंदर रहता है तब तक वो बॉडी गिरती नहीं है। जैसे ही वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के बाहर निकल जाता है, बॉडी गिर जाती है। दिस इज द लॉ फॉर जो गाड़ियां का एक्सीडेंट भी होता है वो भी इसी लॉ के आधार पर होता है। जब तक वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर रहता है तब तक वो गाड़ी चलती रहती है। जैसे ही बाहर गया गाड़ी टॉपल हो जाती है। आई थिंक दैट वाज माय सिंगल बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन। एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि आज सुबह जैसे पिछले 2-3 हफ्तों से हो रहा है कि कल शाम को मैं ये प्लान कर नहीं सोया था कि जी कल सुबह इनर सर्कल है। तो 7:20 पर अलार्म बजा। तो एक दफा लगा यार सर्दी है, छोड़ो किसी ने कोई हेल्प। सबसे पहले फिर मैंने व्हाट्सएप मैसेज देखा कि भाई किसी ने कोई अल्लाह गुल्ला किया कि नहीं किया, कुछ नहीं किया था। तो फिर मैंने सोचा कि जी ओके लेट इट गो। फिर मैंने कहा नहीं भाई, ये आज लेट गो कर दिया तो हमेशा के लिए लेट गो हो जाएगा। सो आई इमीडिएटली वेंट बैक, I picked up the message which was there, I shared it on WhatsApp group and shared it individually to all of you. इस दौरान जाकर मैंने कुल्ला वगैरह किया, अपना मुंह साफ वाफ किया। तो इसलिए मनीष जी जिस समय आप आए थे उस समय मैं जो था वो वीडियो ऑन नहीं था, और जाहिर सी बात है मैंने वीडियो भी नहीं देख रखा था। तो while we were there on the call, I went and I selected the video and this is what got created. So इसने कहीं पर तो कहा था बीच में कि जी successful people they don't get fluttered with when some unscheduled thing happens in their life. इसने किसी और शब्दों में कहा था बट मोटा मोटा ये कहा था। So that I would say is another important thing. Ki, yes, there may be things which you have not planned. There may be things for which you have not planned, right? And you have to do it at that moment. उस टाइम पर ना अपना आपा खोना है और ना ही अपना संतुलन खोना है। तो तब भी वो चीज जो है बड़े आराम से हो जाती है। So now this has happened with ease and grace. राइट हाँ जी प्लीज मनीष जी। सर आप लोग से मेरा एक सवाल है, सपोज दैट एनी पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग बट इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग, तो इट इज नेसेसरी कि रीडिंग ही करके लर्न करना जरूरी है या फिर यू कैन लर्न विद द ट्रेनिंग और एक्सेट्रा, तो या रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो उसने क्या कहा था कि जी यू नीड नॉट रीड ओनली बुक्स, Okay. You can also read audio books. और उसने उसमें यह भी कहा है कि जी आप नहाते समय भी सुन सकते हो, अर्थात जो समय नॉर्मली आप वेस्ट करने वाले थे उसका भी आप सदुपयोग कर सकते हो। तो इट कैन, तो आज की डेट में तो पहले तो शायद इतने फॉर्मेट्स नहीं थे, अभी आपके पास मोबाइल के ऊपर आप किताब पढ़ सकते हो, राइट? सो दिस इज अ डिजिटल फॉर्मेट।
ऑडियो बुक्स आप ले सकते हो, और कुछ नहीं तो जिस तरह अभी हमने वीडियो देखा इस तरीके से हम और वीडियोस जो है देख सकते हैं। तो ये हमारी चॉइस है कि जी वो हम जब सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन जा रहे हैं तो क्या हम नुक्ताचीनी करने में समय बिता रहे हैं या ये देखने में बिता रहे हैं कि जी कौन से इलेक्शन में क्या चल रहा है या किस एक्टर के साथ क्या बीता, या हम ये देख रहे हैं कि जी और क्या उठाया जा सकता है यहां से। क्या कहना है आपका इसके ऊपर? सर मैं राजेश सर से जानना चाहूंगा थोड़ा सा। See, Manish, two things, like Atul rightly said, the formats of learning are very wide today. Listening to such talks can at times, you can, if you're just in the listening mode, you can pick up a lot. Reading gives you another added dimension. It gives you the strength of expression. Because listening is fine, you are trying to, imbibe something, have something, stir up something in you. But reading gives you the power of grammar, the method of expression, and even ability to write and express. So I know a lot of my reading gave me the power of expression. How do I express? तो रीडिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं है। And I will also add one thing to this. हम जब बच्चे थे ना तो हमें कॉमिक्स, तो between reading books and comics, it was suggested that you read books. Yes. पूछिए क्यों? इसलिए क्योंकि जब आप कॉमिक देखते हो या आप कोई वीडियो देखते हो तो आप अपने दिमाग में इमेजिन नहीं कर रहे हो। एक इमेज आया, आपने वो देखा, एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। वेयर एज जिस समय आप रीड कर रहे हो ना, पढ़ रहे हो, तो जो आप पढ़ रहे हो उसको आप अपने दिमाग में बिठाने के लिए उसको इमेजिन कर रहे हो। So your power of imagination is something which is growing and it is becoming stronger. So, जैसे राजेश जी ने कहा ना कि जी reading has no substitute, no alternate. I am just sharing why it does not have an alternate. Because that strengthens your power of imagination. When your imagination is strong and alive, then you are able to think in scenarios which are new, in scenarios which are unprecedented, which have never ever happened in life. You are still awake at that point in time. Does that make sense? मैंने एक चीज सुना है कि जो आप कान से सुनते हैं उसके बनिस्बत जो आंख से दिखते हैं वो 5 गुना ज्यादा स्टेबल रहता है माइंड में। वो तो है ही ना, कहते हैं आंख से सुने और कान में, सॉरी, आंख से देखे और कान से सुने में 5 उंगल का अंतर होता है, ये कहावत है। सो कान से सुने के ऊपर आप उतना विश्वास नहीं कर सकते। मगर मेरा मानना ये है कि हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। When we use all of them together, that is the most powerful one. अभी कल ही मैं एक मैसेज देख रहा था व्हाट्सएप के ऊपर जिसमें कि एक कुत्ते ने एक बकरी को गले से पकड़ रखा था। उसके 2 इमेजेस थे। एक इमेज उसका क्लोजअप इमेज था जहां पर बकरी का गला कुत्ते के मुंह में था, ठीक है जी।
दूसरे में उसका लॉन्ग शॉट था जिसमें कि वो बकरी जो थी वो पानी के अंदर थी और वहां पर गिर रही थी, पीछे बकरियों का झुंड था और वहां पर कुत्ता जो है वो उसके गले से उसको खींच रहा था बाहर। तो जो क्लोजअप था उसमें वो कुत्ता जो था वो जान ले रहा था, लॉन्ग शॉट में वो कुत्ता उसे जान दे रहा था, राइट? सो व्हाट दे से, कॉन्टेक्स्ट इज किंग। तो एंड वेरी ऑफन मीडिया में ये चीज बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। बंदे ने क्या कहा केवल उतने 4 शब्द लिख दिए, लेकिन वो 4 शब्द किस कॉन्टेक्स्ट में थे वो नहीं है। और वो कॉन्टेक्स्ट हमें तभी समझ में आता है जब हम देखने के साथ सुन भी रहे हैं और उसका आभास भी कर रहे हैं, हम अपनी 5 इंद्रियां इस्तेमाल कर रहे हैं, तब जाकर हमें काफी आभास होता है। तब भी मैं ये नहीं कहूंगा कि जी 100% आभास होता है। डज इट मेक सेंस? हाँ जी, और बताएं। बहुत बढ़िया। ये बुक के ऊपर जो है या लर्निंग के ऊपर डिस्कशन, इट्स अ ग्रेट थिंग जो आपने शुरू करा है। तो इसमें मेरा भी एक वो है, सेल्फिश इंटरेस्ट है। आप लोगों के साथ मिलकर जो है मेरा भी जीवन तरोताजा रहता है। हर सिचुएशन को फ्रूटफुल, मतलब बेहतर बना दे। बिल्कुल। जैसा भी अब 4 ही हैं उसको फ्रूटफुल बना दे। हम तो केवल 2 होते तो भी फ्रूटफुल होते, एक में दिक्कत हो जाती तब शायद कुछ और कर लेते। और बताएं। और आज छुट्टी है और छुट्टी मना रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि कहाँ जाके जो है डिस्कशन। और मनीष जी ऑफिस कब आ रहे हैं? आपके यहाँ नेक्स्ट वीक का रख लेते हैं। मंडे को तो नहीं, ट्यूसडे वेडनेसडे में कभी रखते हैं। अच्छा, एक चीज ये है कि जी नेक्स्ट फ्राइडे को, मिथिलेश जी आपने शायद मिस किया था, नेक्स्ट फ्राइडे को हम लोग मिल रहे हैं CSOI केजी मार्ग। ठीक है, ठीक है ना, लंच के लिए मिलेंगे एंड वील गो डच। देखिए कोशिश करते हैं अगर हम 20 तक ले जाएंगे तो मजा आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि इतने लोग हो जाएंगे। ठीक है जी, एड्रेस डाल दिया उस पे? अभी डाल देंगे, अभी तो बात ही हुई है। अभी तो डिसाइड हुआ मिथिलेश जी, आज ही डिसाइड हुआ है? अभी हुआ है सर, 15 मिनट पहले आपके आने से पहले डिसाइड हुआ था। अभी तो मैं ये अभी 2 मिनट पहले तो मैं ये शेयर कर रहा था कि जी 7:30 बजे की मीटिंग थी और 7:20 पर सोच रहे थे कि जी करनी कि नहीं करनी। अभी तो हमने हफ्ता पहले कर लिया, ये तो बहुत बड़ा गोल तय कर लिया हमने। नेक्स्ट फ्राइडे कुछ नॉन वर्किंग डे है क्या? तो नहीं, नॉर्मल वर्किंग डे है। एक ये चैलेंज आएगा, वर्किंग डे है तो लंच मीन्स literally have to take half a day off. So if you suggest, we can maybe do it a day later. ये check कर लो, because you know Friday being a working day. See, working day, so this is a part of work only. नहीं, see, you will have official engagements, so you know schedule करना पड़ेगा। ठीक है, एक दफा इसके मीटिंग के बाद अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इफ दैट वर्क्स तो हम संडे कर लेते हैं, संडे नहीं सॉरी सैटरडे कर लेते हैं। मेरा ऑफ कोर्स मेरे सैटरडे सब बुक्ड होते हैं, बिकॉज आई गो फॉर दैट कॉर्पोरेट कंसल्टिंग टू अ कंपनी। देन लेट अस कीप इट फ्राइडे ओनली। आप फ्राइडे के लिए अवेलेबल है ना? आई डोंट नो येट, बिकॉज आई कुड बी ट्रैवलिंग ऑल्सो। नो वरीज, प्रो कर दो 10 में से 8 ही आएंगे या 6 ही आएंगे।
किसी बिल्कुल भी ठीक दिन है। आप रखोगे ना, तो संडे लोग फैमिली के साथ जाते हैं, संडे को वैसे भी करवा चौथ है, तो संडे वाले दिन हम ना ही कुछ करें तो बेहतर रहेगा। करेक्ट। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बहुतों को पड़ेगा। मुझे ही फर्क नहीं पड़ता। ऊंचा मत कह दीजिएगा, घर पर ही होंगे आज आप। नहीं Saturday नहीं, might see Saturday could be a better day. I mean, not for me, but for most, Saturday could be a better day. लेट अस चेक आउट। आई थिंक फ्राइडे अगर हो जाता तो फ्राइडे भी अच्छा, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस मीटिंग ओनली, राइट? सो आपने कोई और और मीटिंग इस शेड्यूल करनी है। इस फ्राइडे क्या कर रहे हैं? वो तो आज है। आज फ्राइडे हो गया, आप तो पूछ रहे हैं भाई इस फ्राइडे क्या कर रहे हैं? अरे आ जाइए। तुमन हो गया। आज शाम को, बस आज दशहरा ही है, आज हम रावण के गमन का थोड़ी खुशी और थोड़ा शोक मनाएंगे। ये नहीं लगता कहीं रावण जलने वाला है? तो रावण जले ना जले, बेचारा गया तो आज ही था। क्यों नहीं चलेगा मिथिलेश जी? अरे सब जगह बंद है, जब मूर्ति नहीं बैठने दिया तो रावण का भीड़ कहाँ से जमने देंगे वो सब? तो आप भी मेरे तो मेरे रावण के सोसाइटी जाने में के, देखो, रावण के जलने के लिए भीड़ की क्या जरूरत है? उसको तो एक ही आदमी खड़ा कोई करके जला जला देगा। दो। जहाँ भीड़ नहीं होगा वहां ये सब कुछ होगा नहीं। ये भीड़ के लिए ही करते हैं सब। नहीं वो ठीक है, इनफैक्ट हमारे घर के एकदम बगल में दुर्गा पूजा का पंडाल हुआ करता था, आपकी बार नहीं हुआ। मैं यही बोल रहा हूँ, जब भीड़ नहीं होगा ना तो कोई उसमें जितना खर्चा आने वाला है ना वो कोई करने वाला है नहीं। उसको लाखों रुपए लगते हैं उसके लिए, तो वो जब भीड़ ही नहीं होगा तो वो क्यों करेगा? मैं तो देख रहा हूँ चलिए जहां जहां फिक्स नहीं है वहां दुर्गा पूजा कहीं नहीं हुआ, जहां फिक्स था सिर्फ वहां हो रहा है। चलिए ठीक है, और कुछ नहीं तो फिर बढ़ाएं आज। अभी वैसे हमारे पास है 18 मिनट। आते हैं, अगर कोशिश करूंगा कि मैं दिन में। आज आपकी है ड्यूटी की छुट्टी है? शाम को 9:30 बजे एक कॉल है, अदरवाइज छुट्टी है। 9:30 बजे कौन आता है? 9:30 बजे कौन नहीं वक्त होगा। अगर दिन में मूड किया तो नहीं, मैं इसका कनाडा की कॉल्स होंगी ना, तो वहां तो अभी एक दिन पहले है, और वहां दशहरे की छुट्टी नहीं होती। चलिए ठीक है, ठीक है सर, बाय। ओके जी, सी यू। ओके, या बाय बाय बाय। बाय।